Hello friends, welcome to Doubtnut. Our question is, the solubility of PbOH whole twice in water is 6.7 into 10 raised to power minus 6 molar. Calculate the solubility of PbOH whole twice in a buffer solution of pH 8. So, in this question, we have been given the solubility of PbOH whole twice in water as 6.7 into 10 raised to power minus 6 molar, and we have to calculate the solubility of PbOH whole twice in a buffer solution with pH 8. So, PbOH whole twice dissociates as Pb2 positive plus 2 times OH negative. If the solubility of Pb2 positive is S, then OH negative will be 2S, and the solubility product will be concentration of Pb2 positive multiplied by concentration of OH negative whole square will be, if it is S, then it is 2S whole square. So this comes out as 4S cube, and the solubility value S is given in the question as 6.7 into 10 raised to power minus 6. So putting the value in KSP, 4 into 6.7 into 10 raised to power minus 6 whole cube, KSP comes out to be 1.2 into 10 raised to power minus 15. Okay, and we have been given that now we have to find the solubility of PbOH whole twice in a buffer solution of pH 8, right? So, in buffer solution of pH equal to 8, we know that POH is equal to 14 minus pH, that is 8. So POH is 6. And talking about the concentration of OH negative, it will be antilog of minus 6. That would be 10 raised to power minus 6. So we have concentration of OH negative as 10 raised to power minus 6. Now, for calculating the solubility of PbOH whole twice, solubility of PbOH whole twice in buffer, right? KSP would be concentration of Pb2 positive and concentration of OH negative whole square. Now, we have already found out the solubility product before, which is equal to, it is the KSP. So putting the value here, 1.2 into 10 raised to power minus 15 concentration of Pb2 positive ion, and concentration of OH negative ion is 10 raised to power minus 6 whole square. So from here we can find that concentration of Pb2 positive ion is 1.2 into 10 raised to power minus 3 molar. Okay, which is also same as the solubility of PbOH whole twice in buffer. Thank you. A sample of AgCl was treated with 5.0 ml of 1.5 molar Na2CO3 solubility to give Ag2CO3. ठीक, मतलब AgCl एक सैंपल है, ठीक, वो इसमें सॉल्युबल किया जाता है तो अपने को Ag2CO3 मिलता है. ठीक, द रिमेनिंग सॉल्यूशन
contained 0.002 ग्राम ऑफ Cl माइनस पर लीटर। ठीक, 1 लीटर में इतना रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है उसमें Cl माइनस इतने ग्राम है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। AgCl का अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब कि KSP फाइंड आउट करना है क्या होगा, और अपने को KSP दिया है Ag2CO3 की। ठीक, तो देखो सबसे पहले अपन ये रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होगी, Na2CO3 ठीक प्लस इसमें अपन क्या डालते हैं AgCl, 2 AgCl गिव्स क्या हो जाएगा 2 NaCl NaCl प्लस Ag2CO3। डन, यहां से ये रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे अब मैं मिली मोल लिखता हूं कब, जो ऐड किए जाते हैं। ठीक, मिली मोल्स एडेड। ठीक, तो Na2O3 का कितना है, देखो 7.5। कैसे, यहाँ पे 5 ml है और मोलर इसकी है 1.5, तो मिली मोल कितना ऐड हो जाएगा 1.5 इंटू 5 मतलब क्या आ जाएगा 7.5। AgCl का कितना है, AgCl तो यहाँ पे एक्सेस में लिया जा रहा है। ठीक, सैंपल वाज ट्रीटेड, ये AgCl एक्सेस में यहाँ पे लिया जा रहा है क्योंकि देखो दिया गया है कि AgCl जो लिया जाता है वो यहाँ पे Ag2CO3 बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे AgCl क्या है, एक्सेस में है। डन, और NaCl क्या रहता है शुरू में 0 और Ag2CO3 भी 0 रहता है। और फिर कितना बचेगा वो लिखूं मैं, तो मिलीमोल लेफ्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि A रिएक्ट हो जाता है। ठीक, A रिएक्ट हो जाता है तो कितना बचेगा, A 7.5 माइनस A। डन, और ये 2A, 2 इसका कोफिशिएंट है और ये A, तो यहाँ पे ठीक ये अपन ने लिख लिया कि रिएक्शन में इतना मिलीमोल है, और फिर जब A रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाता है तो ये कितना बचता है 7.5 माइनस A, और ये A और 2A बन जाते हैं। डन, तो यहाँ पे अपने को जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन है वो अपने को गिवन है, देखो कितना 0.0026 अपने को ग्राम है। ठीक, पर लीटर में, और अपने ग्राम दिया है तो ग्राम पर लीटर पे दिया है तो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। Cl का कितना होता है 35.5 मोलर मास होता है, तो डिवाइड कर देंगे तो मोल में अपने को मिल जाएगा 7.32 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर अपने को, मतलब कि ये आ गया मोलरिटी आ गई। डन, अब देखो एंड ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस फॉर्म, और Cl माइनस जो बनेगा ठीक उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, मिली मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम इन ml, क्योंकि ml में हम सब वॉल्यूम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2A/5। यहाँ पे देखो 2A/5 कहाँ से आया, ये रहा 2A, इसका कंसंट्रेशन ये जब चेंज होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 क्या Na प्लस 2 Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस। ठीक, तो Cl माइनस कितना बन रहा है अपना 2A बन रहा है। ठीक, तो 2A/5 हो गया। डन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपने को दिया गया था और इस इक्वेशन से इतना बनेगा, तो ये दोनों इक्वल जब अपन लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A/5 इक्वल टू 7.332 इंटू 10⁻⁻5, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1.83 इंटू 10⁻⁻10 मिली मोल। ठीक, A कितना रिएक्ट होगा 10⁻⁻4 इंटू 1.8 मिलीमोल। ठीक, ये हो गया रिएक्ट, मतलब कि ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिली मोल ऑफ Na2CO3 लेफ्ट इन 5 ml। A की वैल्यू इतनी आ गई, तो अपन अब निकाल लेते हैं कि कितना Na2CO3 लेफ्ट होगा 5 ml में। ठीक, क्योंकि 5 ml में बोला गया था, तो ये यहाँ पे देखो कितना है 7.5 माइनस A है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 माइनस A, 7.5 माइनस A अपन ने निकाला 1.83 इंटू 10⁻⁻4, जो कि देखो ये बहुत छोटी राशि है, तो ये नियरली इक्वल टू कितना रहेगा 7.5 के इक्वल रहेगा।
तो अपन लोग इससे CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन इसमें कितना आएगा 7.5 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम कितना है 5 ml, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक, सॉरी ये 1.5 आएगा, 15×5 = 75। ठीक, 1.5 आ गया अपने को CO2 का कंसंट्रेशन। अपने को यही दोनों चाहिए था। अपने को क्या निकालना था, अपने को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था AgCl का। ठीक, तो अपन ने देखो Ag प्लस का अपने को दिया क्या था, अपने को Ag2CO3 का Ksp दिया है। तो यहाँ से अपन Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, क्योंकि Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने निकाल लिया है। अब Ag प्लस का बस कंसंट्रेशन निकालना बाकी है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन इससे निकालेंगे। Ksp अपने को दिया गया है Ag2CO3 का, तो Ag2CO3 का Ksp लिखेंगे, क्या हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो Ag2CO3 किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है Ag प्लस में और CO3 2 माइनस में, और इक्वल करने के लिए यहाँ 2 का इंटू होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग Ksp लिख दें, Ksp क्या है, Ksp अपने को जो गिवन है दी गई है वो है 8.2 इंटू 10⁻⁻12। ये देखो ये क्वेश्चन में अपने को 8.2 इंटू 10⁻⁻12 गिवन है, तो ये किसके हो जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस की अभी अपन ने कंसंट्रेशन निकाली 1.5, तो यहाँ से Ag प्लस का स्क्वायर जो रहेगा उसका आंसर कितना आ जाएगा 5.46 इंटू 10⁻⁻12। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू 2.34 इंटू 10⁻⁻6। अब अपने को Ksp किसकी निकालनी थी, तो अपने को Ksp निकालनी थी Ksp फॉर AgCl। तो AgCl का Ksp क्या होगा, Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि देखो Ag जो Cl है वो कन्वर्ट होता है Ag प्लस और Cl माइनस में, तो ये हो जाएगा Ksp। Ag का अपन ने कंसंट्रेशन निकाला कितना 2.34 इंटू 10⁻⁻6 और Cl माइनस का ऊपर निकाला था कितना अपन ने कंसंट्रेशन, Cl माइनस का ये निकाला है, यहाँ पे कितना आया है देखो Cl माइनस कंसंट्रेशन 7.32 इंटू 10⁻⁻5 7.32 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो AgCl का जो था Ksp, AgCl का Ksp, ठीक, वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 1.71 इंटू 10⁻⁻10। डन, ये आ गया अपना आंसर। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि AgCl वॉज ट्रीटेड विथ, AgCl एक सैंपल है जो ट्रीट की इसमें किया जाता है Na2CO3 सॉल्युबिलिटी टू गिव Ag2CO3। ठीक, Na2CO3 में करा जाता है रिएक्शन, तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, Cl का कंसंट्रेशन मिल जाएगा क्योंकि इसमें ट्रीटेड किया जाता है, और अपने को Cl दिया गया है कि इतना रिमेनिंग रहता है, इतना उसमें प्रेजेंट रहता है, इतना पहले से प्रेजेंट रहता है। तो अपन ने यहाँ से Cl का कंसंट्रेशन निकाल लिया, कितना आता है 7.32 इंटू 10⁻⁻5। अब अपने को किसका चाहिए था, Ag का कंसंट्रेशन, तो Ag के कंसंट्रेशन के लिए अपने को Ksp दी गई थी Ag2CO3 का, तो यहाँ से अपने को CO3 का कंसंट्रेशन निकालना था। तो इस वाले रिएक्शन में जो CO3 फॉर्म होगा कितना, वो अपन ने निकाल लिया। ठीक, कि CO3 कितना फॉर्म होता है, CO3 फॉर्म होता है CO3 2 माइनस कितना फॉर्म होगा, जितना कि Na2CO3 का मोलर मास होगा, ठीक, उतना ही CO3 भी फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो ये अपन ने निकाला है Na2CO3 कितना फॉर्म होता है 7.5, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 ml में होता है ये टोटल पूरा सब चीज। तो यहाँ पे CO2 माइनस का कंसंट्रेशन अपन ने निकाला, तो फिर अपन को Ag मिल गया, Ksp दिया था तो उससे फिर दोनों का इंटू कर दिया हम लोग Ksp निकालने के लिए AgCl का,
Ag प्लस और Cl माइनस के कंसंट्रेशन का, तो अपना आंसर आ गया। डन।